Hello everyone, this is Rajesh Ranjan, your educational mentor, and we are now going to start a series of general study preparation. For that, number of videos will be coming on a regular basis, which will help you to enrich your knowledge and your understanding about medieval history. In the medieval history, we are going to take up the topic of Delhi Sultanate period, in which today we are going to study uh, Khilji dynasty. So, in the Khilji dynasty, we will try to study in a manner that the data, the names of the rulers, emperors, that you will be easily understanding and remembering. So let's study the history. Definitely, you will have the capacity to memorize the occurrence, the events that happened during the this Khilji dynasty in a very easy manner. So now let's start. Here you could see Khilji dynasty. If you could see, the Khilji dynasty starts from the year 1320. So you need to understand for how many years the Khilji dynasty basically ruled Delhi Sultanate in our country, India. So if you see, then you need to divide, the subtract 1290 from 1320. So it is coming 30. So it means 30 years. So for 30 years, the Khilji dynasty rulers ruled this country. So here, not exactly the entire country, but majority of the part of India they had ruled. So you could see here on the board that, let us first understand how many rulers were there and which ruler had ruled the Delhi Sultanate for a longer period of time. So let us write it that way. First, second, third, fourth. Let us see how many rulers we are going to come across. So the first ruler is Jalaluddin. Firoz Khilji. His period was from 1290 to 1296. Now, the second ruler, the successor of the founder emperor of Khilji dynasty, was Alauddin Khilji. His period of rulership was from 1296 to 1316. And the third one was Shihabuddin Khilji. His period was very less. That was in the year 1316 and only for 35 days. Only for 35 days. After that, the next was Qutbuddin Mubarak Khilji. His tenure was from
1316 to 1320. And the fifth one was, however, the fifth one was not from the Khilji dynasty, but he was basically the minister of Qutbuddin Mubarak Khilji. So his name was Nasiruddin Khusro Shah, and he ruled only for 12 days in the year 1320. So this way you see, over a period of 30 years, only 5 rulers were there in खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी में कितने लोग थे? खिलजी डायनेस्टी में जो शासक थे वो सिर्फ 5 थे. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक था, ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली वॉज हिज नेफ्यू, एंड ही वॉज अ वेरी पावरफुल, very intelligent, but he was illiterate. He was not educated, but he was having the understanding, knowledge as to how sultanate can be ruled, how the subjects of the sultanate can be given comfort, and what way they can be brought under the system of rulership so that he can expand his एम्पायर. नाउ अब हम लोग एक के बाद एक देखेंगे. पहले आज हम इसको समझते हैं कि खिलजी डायनेस्टी में 5 थे, ये हमें कैसे याद होंगे. हमने देखा पहले 1290 में खिलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन होता है, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की, और 1320 तक चलते चलते 30 वर्ष का सफर खिलजी डायनेस्टी तय करता है, जिसमें 5 शासक हैं. अब आप यदि इसमें देखें तो जो पहला शासक है, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, उसने सिर्फ 6 इयर्स तक ही रूल किया. और सबसे अच्छी बात यह है, आपकी जानकारी के लिए यह जानना जरूरी है कि व्हेन ही फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी, हिज एज वाज 70 इयर्स. हिज एज वाज 70 years. So in the year 1296 he was 76 years old. It means his capacity was day by day deteriorating. At the same time, in the year 1296, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, तब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, 76 साल का जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी का एज क्या था? सो अलाउद्दीन खिलजी का एज इस समय था 30 इयर्स. कितना साल? 30 इयर्स. क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का बर्थ 1266 में हुआ था, एंड ही वाज क्वाइट यंग, ही वाज ब्रेव, एंड ही वाज हैविंग acumen. I mean, he was having the knowledge based on which he knows as to how to handle the other ministers, the subjects, and the officials under a kingdom. So इनको देखिए, खिलजी को, he ruled basically for 20 years. It means कि 20 साल का शासन काल सबसे ज्यादा शासन काल है अलाउद्दीन खिलजी का. यानी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें जानना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. Why? Because for a ruler to rule for 20 years is a not small period of ruling. Then अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका बेटा बनता है शासक. एक्चुअली शिहाबुद्दीन खिलजी was only 6 years old. अब now you will have question in your mind कि 6 साल का बच्चा कैसे शासक बन सकता है. ये बात सवाल दिमाग में आना जरूरी है. और सही में 6 साल के बच्चे जिसको भी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो शासक कैसे बन सकता है. लेकिन हाँ, चूंकि वह अलाउद्दीन खिलजी का सन था, तो उसे
6 साल की उम्र में शासक बनाया गया। यहाँ आपको जानना जरूरी है कि 6 साल का पुत्र तो था, सन तो था अलादीन खिलजी का, लेकिन साइमल्टेनियसली एडल्ट सन्स भी थे अलादीन खिलजी के, और वो था मुबारक खिलजी। लेकिन 6 साल के बच्चे को ही शासक बनाया एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी का एक वजीर था, सेनापति था, जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर भी काफी ब्रेव था और वो उसकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं काफी थी, तो वो खुद अलाउद्दीन खिलजी की जगह पे रूल करना चाहता था, वो खुद सुल्तान बनना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में उसने अलाउद्दीन खिलजी का एसेसिनेशन किया और उसके अन्य बेटों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे करके शिहाबुद्दीन खिलजी, जो कि 6 वर्ष का था मात्र, उसे शासक बना करके और उसके प्रोटेक्टर के रूप में, उसके संरक्षक के रूप में मलिक काफूर ने खुद शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन यह मलिक काफूर सिर्फ 35 डेज तक ही रूल कर पाया थ्रू शिहाबुद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का थर्ड सन था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये नहीं चाहता था कि शिहाबुद्दीन खिलजी शासक बने, क्योंकि एक तो इसका एज कम था और साथ ही साथ कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की भी महत्वाकांक्षा थी कि वो रूल करे। तो उसने क्या किया, मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या करवा दी, और मलिक काफूर की हत्या कराने के बाद उसने शिहाबुद्दीन खिलजी को जेल में बंद कर दिया, और जब वो जेल में बंद किया उसके बाद मुबारक खिलजी अपने को सुल्तान घोषित किया, और इस तरह से सुल्तान घोषित 1316 में किया, और 4 साल तक उसने रूल किया टिल 1320। अभी यह रूल कर ही रहा था कि इसकी भी हत्या करवा दी उसके वजीर नसीरुद्दीन खान ने, और यह नसीरुद्दीन खान जब उसकी हत्या करा करके और गद्दी पे बैठा तो यह सिर्फ 12 दिन तक ही शासन कर पाया 1320 में, और वह पीरियड था 15 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ओनली फॉर नाउ वी आर कमिंग टू अलाउद्दीन खिलजी। So we will understand Alauddin Khilji's personality and what were the prerequisites for Alauddin Khilji to rule the Sultanate of Delhi for 20 years. So you could see here the requisites for the Emperor Alauddin Khilji basically start from power. किसी भी शासक को शासन चलाने के लिए और लंबे समय तक शासन करने के लिए ये जरूरी है कि आप के पास शक्ति हो। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर, अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली developed a system of military wherein he had made his effort to keep the military forces motivated and make sure that these army forces will be ready all the times to fight for expansion of his kingdom. So उसने क्या किया कि सबसे पहले मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, मिलिट्री रिफॉर्म्स किए। मिलिट्री रिफॉर्म्स उसने क्या किया कि पहले क्या होता था खिलजी डायनेस्टी के पहले कि जो भी लोग सेना में होते थे उन सैनिकों को वेतन के रूप में जमीनें दे दी जाती थी, और उस जमीन पे वो खेती करते थे, और जो उपज होता था वही उपज उनके लिए इनकम के रूप में होता था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि एक तरफ राजस्व का नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ जो सैनिक हैं, जो कि वो खेती बाड़ी में भी लगे रह रहे हैं, तो उनका लड़ने के प्रति, युद्ध करने के लिए
जो समय उन्हें देना चाहिए था वो कहीं ना कहीं वो समय नहीं दे पा रहे थे। साथ ही साथ वो मनी के पावर को समझता था अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने क्या किया कि मिलिट्री फोर्सेस को अस्थायी रूप से डेवलप किया, और उसने ये किया कि जो भी सैनिक उसके होंगे वो अस्थायी रूप से सर्विस में रहेंगे और उन्हें वेतन दिया जाएगा, और वो कैश वेतन दिया जाएगा, और उस वेतन के लिए उन्हें जमीनें नहीं दी जाएंगी। तो सबसे पहला काम क्या किया कि मिलिट्री रिफॉर्म्स किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसने एक परमानेंट मिलिट्री फोर्स सिस्टम को डेवलप किया। अब उसने इस सिस्टम में क्या किया कि जो सैनिकों के पास जमीनें थी उनको उसने वापस ले लिया, और इन सैनिकों को वेतन देना शुरू किया, सैलरी देना शुरू किया। अच्छा, क्या आपको पता है, मैं समझता हूं कि बहुतों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें उनकी जानकारी के लिए, कि वो जो सैलरी दिया जाता था वो सैलरी मंथली नहीं होता था, वो सैलरी ईयरली होता था। क्या होता था? ईयरली। और सैनिकों को जब दिया गया सैलरी ईयरली बेसिस पे, तो उनके पास कैश पैसे आने लगे। दूसरा क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ फाइटिंग हॉर्सेस एंड द मिलिट्री फोर्सेस को इंश्योर करने के लिए उसने दो तरह की पद्धति का पालन किया। पहली पद्धति थी कि घोड़ों हॉर्सेस को दागा जाता था। हॉर्स के बॉडी पे कहीं एक जगह निशान दाग करके एक निशान बनाया जाता था, ताकि उस घोड़े की पहचान हो सके, और इस तरह दागे हुए घोड़े ही मिलिट्री में रहते थे युद्ध करने के लिए। दूसरा उसने क्या किया, फेस डॉक्यूमेंटेशन। फेस डॉक्यूमेंटेशन किसका? जो भी मिलिट्री फोर्स थे, जो भी मिलिट्री पर्सनल थे, उनके चेहरे को चेहरे के बारे में, उनके हुलिया के बारे में लिखा जाने लगा अभिलेखों में, कि उनका चेहरा किस तरह का है, रंग कैसा है, चेहरे का शेप कैसा है, और कभी कभी तो प्रयास ये भी होता था कि उस आधार पे उनके चेहरे का एक स्केच भी बनाया जाए। तो इस तरह से हुलिया लेखन और दूसरा घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने की। उसके बाद उसने ये समझा कि साम्राज्य को यदि विस्तार देना है, साम्राज्य को विस्तार देना है, तो यह जरूरी है कि साम्राज्य को विस्तार देना है तो ये जरूरी है कि धन की कमी न रहे। तो उसने इसके लिए एक सबसे अच्छा काम किया कि उसने आर्थिक सुधार किया, और आर्थिक सुधार करते हुए उसने टैक्स एंड लैंड रिफॉर्म के काम शुरू किए। खिलजी उसके शासन के पहले इक्तेदारी के रूप में शासन के बहुत सारे अधिकारियों को, बहुत सारे अमीरों को, उलेमाओं को जमीनें दी गई थी, और उन जमीनों को अलाउद्दीन खिलजी ने वापस लिया और बोला कि जितने भी इक्तेदारी के रूप में जमीनें दी गई हैं उन सभी जमीनों को वापस लिया जाएगा, और जिनके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा संपत्ति है, उस संपत्ति पे कर भी लिया जाएगा, टैक्स भी लिया जाएगा। तो पहला काम तो उसने यह किया। दूसरा उसने किया कि जो टैक्स लगाया, जमीन पर जो टैक्स उपज होता था उस उपज पे कर लगता था, तो अलाउद्दीन ने उस टैक्स को बढ़ाकर 50% कर दिया। पहले यह टैक्स कम होता था जमीन की उपज पे। तीसरा उसने कुछ कर लगाए। उन कर को किस तरह से लगाया, तो उस कर के बारे में आप लोग जान लीजिए, जानना चाहिए। एक है जजिया, जकात, खम्स, खराज, चरी एंड घरी। जजिया कर पहले से मुस्लिम शासकों के द्वारा लगाया जाता रहा है, और उसको कंटिन्यू किया अलाउद्दीन खिलजी ने।
जजिया जो है एक तरह का कर होता है, वो उन कम्युनिटी पे लगाया गया था जो गैर मुस्लिम थे। उन गैर मुस्लिमों से उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो उनसे कर लेता था। जकात, जकात एक ऐसा कर था जो सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था और मुसलमान लोगों की जितनी आय होती थी उस आय से 2.5% कर लिया जाता था। खुम्स, खुम्स जो है बेसिकली जब भी ये लोग इन्वेड करते थे किसी एरिया पे, कहीं लूटपाट करते थे, तो उस लूटपाट में होता क्या था कि जो भी धन दौलत ये लोग लूट कर लाते थे उसका बंटवारा होता था सुल्तान और सेना के बीच में। तो पहले ये जो बंटवारा होता था वो बंटवारा होता था 25% और 75%, यानी लूट के माल का 75% सेना के पास रहता था और 25% सुल्तान के पास। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसको पलट दिया, 75% अब सुल्तान के पास रहेगा और 25% सेना के पास रहेगा। खराज, खराज भी एक तरह का कर है जो कि जिन लोगों के पास संपत्ति होती थी, जमीन ज्यादा होती थी, आय यदि उनकी ज्यादा हो रही है तो उस पर खराज का टैक्स लगता था। चरी, चरी से आप ये समझिए कि जिनके पास पशु होते थे, चरने जाते थे फील्ड में, तो उसके लिए भी चराई के लिए, ग्रेजिंग के लिए, मीन्स कैटल ग्रेजिंग के लिए टैक्स लगाया गया था। घरी, घरी मीन्स घर, जिन लोगों के पास भी घर होता था तो उन्हें हाउसिंग टैक्स देने होते थे, तो ये घरी है। हालांकि इसके अलावा भी और सारे टैक्स लगाए गए थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण 6। रिलीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। कैसे कि कुछ शासकों को, मुस्लिम शासकों को ये लगता था कि वो जो भी शासन, उनके शासन में रिलीजन चल रहा है, वो अपना एक नया रिलीजन स्टार्ट करना चाहते थे। हो सकता है नए रिलीजन को स्टार्ट करने के पीछे उनकी मंशा कुछ राजनीतिक रही हो या सामाजिक रही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा जो रिलीजन स्टार्ट करने की सोची गई तो निश्चित रूप से यह एक अद्वितीय तरह का सोच था। इस तरह का सोच अलाउद्दीन खिलजी के समय देखने को मिलता है। आप जब पढ़ेंगे मुगल कालीन इतिहास, तो उस मुगल कालीन इतिहास में अकबर ने भी एक नया धर्म चलाने की कोशिश की थी। कोशिश क्या की थी, उसने चलाया था और उस धर्म का उसने नाम दिया था दीने इलाही, और दीने इलाही को सुलह कुल के सिद्धांत के आधार पे उसने चलाया था। निश्चित रूप से वो एक धर्म था जो सभी संप्रदायों के बीच में समरसता, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने वाला था। लेकिन आप जब उसका विश्लेषण करते हैं, when you analyze that दीने इलाही, then you will find that somehow that initiative of दीने इलाही was to have a control on the subjects of the kingdom, मुगलिया किंगडम। तो यहाँ भी इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने कोशिश की थी कि एक नया धर्म चलाया जाए। लेकिन जब धर्म की बात चली तो उसने उलेमाओं से बात किया। ये उलेमा कौन होते थे? ये उलेमा वो होते थे जो मुस्लिम विद्वान थे, जो मुस्लिम धर्म के ज्ञाता होते थे। तो जब उनसे ये बात किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी को उलेमाओं ने सलाह दिया कि नहीं, आप नए धर्म की बात अभी मत सोचिए, जो हमारा इस्लाम का धर्म है उसे ही चलने दीजिए, हम अभी उसी को फॉलो करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर सोचा। अलाउद्दीन खिलजी बेवकूफ नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी हमेशा समझदार था। क्रूर शासक जरूर था लेकिन समझदार शासक था। तो उसने नया धर्म चलाने की बात को, की सोच को दूर कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे वो बहुत हाई थे। The political ambitions of Alauddin Khilji were very high. Why? Because he wanted to conquer the entire world. The entire world. और इसलिए उसने अपने को एक उपाधि भी दी, स्वयं से स्वयं को उपाधि दी, और उस उपाधि का नाम था सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सानी। बेसिकली वो कहता था सिकंदर सानी,
सानी मीन्स नन अदर देन दैट, यानी उसके जैसा नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कि इसकी सानी नहीं है, यानी कि इसके तरह का कोई नहीं है। तो उसने अपने को उपाधि दिया सिकंदर सानी, यानी ही वॉज लाइक सिकंदर, और वह चाहता था कि पूरा वर्ल्ड उसके कंट्रोल में हो। लेकिन उसके कुछ वेल विशर्स थे, कुछ मित्र थे, तो उन लोगों ने उसे समझाया कि ठीक है विश्व विजेता बनना, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि भारत को ही पूरा जीत लो। जहां पे तुम काम कर रहे हो दिल्ली सल्तनत के भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ा लो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर काम किया, लेकिन उपाधि उसने सिकंदर सानी की अपने प्रति रखे रही। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अलाउद्दीन ने एक विजेता था, बड़ा विजेता था, और वो चीजों को कॉन्कर करना चाहता था। आप जब दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी दो तरह से शासन को विस्तार देने का सिद्धांत बनाया था। एक था उत्तर भारत के राज्यों का को विजित करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाना, और दूसरा था कि दक्षिण भारत में जिन राज्यों को वो विजित करेगा, जीतेगा, कॉन्कर करेगा, उन्हें अपने दिल्ली सल्तनत के अधीन तो रखेगा, लेकिन शासक वहीं का होगा। तो इस तरह से दो तरह के सिद्धांतों को अपना करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी कुछ वर्ष पहले, रानी पद्मावती। वो पद्मावती रानी की कहानी बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। यह घटना सन 1300 की है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो सैनिक अभियान किए गए साम्राज्य को विस्तार देने के लिए, उसके लिए जरूरी था कि उसके पास कॉम्पिटेंट सेनापति हो। तो उसके पास 4 सेनापति थे, बहुत कॉम्पिटेंट थे। पहला आप देखेंगे कि सेनापति जफर खां, दूसरा सेनापति था, फिर से कहें, पहला सेनापति था जफर खां, दूसरा था नूर सतन खां, जिसे लोग नुसरत खां भी बोलते हैं, तीसरा था उलुग खां, और चौथा था मलिक काफूर। मलिक काफूर बेसिकली एक किन्नर था, ट्रांसजेंडर था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्यों इसे 1000 दिनारी कहा जाता है? क्योंकि जब गुजरात के अभियान पर नुसरत खां आया था, ये 2 नंबर आप देखिए, नुसरत खां जब गुजरात के, आप जब यहां देखेंगे तो यहां पे जब आक्रमण किया था, अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी के निर्देश पे नुसरत खां ने, तो उसने गुजरात को फतह किया था, जीता था, और यहीं पे उसे मलिक काफूर नाम का एक किन्नर मिला था, और उसे उसने 1000 दिनार में खरीदा था, और इस गुलाम को उसने अलाउद्दीन खिलजी को पेश किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देखा तो मलिक काफूर एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बुद्धिमान ट्रांसजेंडर था, किन्नर था। अतः मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में स्थान दिया और मलिक काफूर को अपना सेनापति बनाया और उसे दक्षिण के राज्यों को विजित करने के लिए अभियान कराए। तो आप देखिए यहाँ पे कि मलिक काफूर इंपॉर्टेंट है, उलुग खां इंपॉर्टेंट है, नुसरत खां और जफर खां। आप देखिएगा, यदि आप नक्शा देखिए भारत का,
तो इधर से मंगोल हैं, ये मंगोल इधर से आकर के अटैक करते थे। और ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में छोटे बड़े करीब 27-28 अटैक्स किए गए मंगोलों के द्वारा। उनसे उनके इस तरह के आक्रमण को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां के नेतृत्व में मंगोलों के विरुद्ध अपना बैटल जारी रखा और जफर खां ने मंगोलों को हराया भी। लेकिन एक ऐसा युद्ध हुआ मंगोलों के साथ जिसमें विजय तो अलाउद्दीन खिलजी की जरूर हुई, लेकिन उसमें जफर खां की मृत्यु हो गई, क्योंकि युद्ध करते हुए जफर खां मारा गया। उसी तरह उलुग खां, नॉर्थ के जो सैनिक अभियान होते थे उसमें उलुग खां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नुसरत खां बेसिकली उत्तर भारत में अभियान करता था राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, और मलिक काफूर बेसिकली सैन्य अभियान किए उसने दक्षिण भारत में। अब आपको थोड़ा मैं बता दूं कि उसने कौन कौन से अभियान किए। 1299 तक, यानी 1290 में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी आता है, और 1296 के बाद 1299 तक, यानी 1296 टू 1299 तक मंगोलों का आक्रमण खूब होता है। 1299 के बाद जब 1300 का साल आता है तो 1300 में उसने और अच्छी बात ये है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने जब साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था तो उस साम्राज्य के विस्तार करने में ये जरूरी था कि उसके पास पर्याप्त धनराशि हो, अच्छे घोड़े हो, अच्छे नस्ल के, अच्छे युद्ध करने वाले कौशल युक्त सैनिक हो। तो उसके लिए जरूरी था कि वो समंदर के रास्ते, समंदर को पकड़े। और आप देखिए गुजरात के पास यहाँ समुद्र है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणनीति के तहत ये गुजरात का विजय करके यहाँ से व्यापार करना चाहता था, ताकि यहाँ के व्यापार से उसे धन दौलत मिले, और साथ ही दक्षिण में बहुत सारे ऐसे केंद्र थे जहां पे अकूत धन दौलत था, उसकी लूट करके अलाउद्दीन खिलजी उन धन दौलत को अपने पास ला सके। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का विजय किया था। अब आप देखिए कि 1300 ईस्वी में उसने दक्षिण की तरफ अपने सैनिकों को भेजा, और 1300 ईस्वी में उसने यहाँ पे उत्तर में, आप देखिए गुजरात के और उसने 1300 में रणथंभौर का अभियान किया था, जो कि राजपूताना वाले क्षेत्र में आता था। तो जब वो राजपूताना वाले क्षेत्र पे अभियान करके वहां के राजपूत राणाओं को, शासकों को जब उसने नियंत्रित किया, तो उसके लिए राह आसान हो गया गुजरात आने का और दक्षिण में जाने का। तो इस तरह से वो 1300 में रणथंभौर का अभियान करता है, और 1300 से 1301 के बीच में ये चलता है। फिर 1303 में वो अभियान करता है चित्तौड़ का, जो हमने अभी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले कि यहाँ की रानी पद्मावती थी और यहाँ के शासक थे राणा रतन सिंह, और राणा रतन सिंह का जो किला था चित्तौड़ का, उस चित्तौड़ किले पे आक्रमण करके चित्तौड़ किले को जीतता है, लेकिन वो पद्मावती रानी को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे रानी पद्मावती ने अपने अन्य किले की महिलाओं के साथ, उपरानियों के साथ जौहर कर लेती हैं। जौहर क्या होता है? जौहर होता है एक अग्नि कुंड बहुत बड़ा सा, जिसमें अग्नि लगाई जाती है, और रानियां जो हैं उस अग्नि कुंड में अपना प्राण त्यागती हैं। तो इस तरह से आप कहानी देखेंगे। अगले वीडियो में हम दक्षिण के आक्रमण जो हुए अलाउद्दीन खिलजी के निर्देशन में, उसके साम्राज्य के विस्तार के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो चर्चा की वो आपको एक स्टोरी के रूप में और थोड़ा साइंस के पर्सपेक्टिव में, मैथ्स के पर्सपेक्टिव में समझने में सुविधा हुई होगी। आपके कोई कमेंट्स हों तो आप जरूर इस कमेंट में भेजें, हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें।
आपके कमेंट्स के आधार पे हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो बनाया जाए। और आपके यदि कोई सवाल हैं तो उन सवाल को आप उस कमेंट बॉक्स में भेजें और हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेट्स को भी लेकर आएंगे और आप उसकी प्रैक्टिस करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इंटरेक्टिव सेशंस भी स्टार्ट करेंगे। तो आज एक ये शुरुआत है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और आने वाले समय में हमारा इंटरेक्शन और बढ़ने वाला है। हमारी कोशिश रहेगी कि 3 से 4 वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश, सैयद वंश, इसको हम लोग पूरा करें, पढ़ें और फिर इस पर टेस्ट सीरीज ला करके हम लोग प्रैक्टिस करके इस विषय को पूरे अच्छी तरीके से समझ जाएं। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।